Waste management is a massive issue as far as Kashmir Valley is concerned, more so because the government has failed to come up with a proper waste management policy, also in the process showing how serious it is in tackling the issue of pollution, because pollution, especially pollution of the water bodies which are getting polluted because garbage and especially plastic and polythene is being thrown on river embankments. And the other day when Kashmir and especially Srinagar and South Kashmir was on the brink of floods, Jhelum was flowing, in fact overflowing above the flood declaration mark. What shocked people most was the amount of garbage, especially plastic polythene, that was floating on the Jhelum for 2 days. That in itself giving a testimony of the kind of pollution and how alarming the situation is. While a proper governmental effort is missing, on the other hand, you still have some cases where individuals have come up with brilliant efforts to tackle the waste. One such example coming in from South Kashmir's Kulgam, where Amir Ahmed, a 30-year-old engineer, decided to take the matter in his own hands. He started a waste management plant and then ensured that there are households who connect with his initiative. Initially it was small, but today 4,000 homes, the waste is collected from there daily, and through a MOU that he has signed with the government is brought to his waste management plant, and especially as far as biodegradable waste is concerned, it is converted into compost and sold. So it's not just that he's tackling the pollution issue as far as the environment is concerned, but he has also given this concept of waste for wealth, waste for money as far as people are concerned. So now they're looking at waste with a different perspective. They're collecting waste and in the process not only earning, but there are also jobs that are coming for the local population. And it's not just about biodegradable waste. He has also set up a plant to recycle plastic and polythene. Plastic he's recycling into granules, he's sending it to factories, and then as far as polythene is concerned, it's shredded and things like bags are made of it. So it's a great example of how even individuals, if they apply their mind, if they have the right intention to serve the society, they can do wonders. So obviously people should take note, and this classic example can be taken up in other places, and similar waste management plants which are decentralized and work with the help of the local population can be set up at other places. मेरा नाम मोहम्मद आमिर खान है। मैं वेस्ट वेल्थ सस्टेनेबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड का सीईओ एंड फाउंडर हूँ। वेस्ट वेल्थ एक एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंटरप्राइज है जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हमें बताइए कि क्या है आपका स्टार्टअप यहाँ पर, मतलब कैसे आप काम करते हैं? इस स्टार्टअप में हम वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस को सॉल्व करते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स की तरफ देखेंगे तो इंडिया में हर दिन 25,000 से ज्यादा टन्स ऑफ मिक्स्ड वेस्ट म्युनिसिपैलिटी से जनरेट होता है जो लैंडफिल्स में एंड अप होता है। एज पर स्टैटिस्टिक्स 2050 में हमारे ओशंस में फिश से ज्यादा यानी मछलियों से ज्यादा उनमें प्लास्टिक्स होगा। तो इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पॉलीथीन की कंजप्शन जो डे बाय डे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है। एज पर स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, पॉलीथीन की कंजप्शन जो है 2025 से 26 तक इसकी कंजप्शन 123% इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है हमारे लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने इस इनोवेटिव सेटअप को लगाया है। यहाँ पे हम दोनों बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम एक इनोवेटिव तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से एक बायोफर्टिलाइजर में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद एक वैल्यू एडिशन बायोफर्टिलाइजर भी हम इसमें ऐड करते हैं जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन में बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल है। अभी तक हमने अराउंड 10,000 बैग्स सेल किए हैं पिछले 2 साल में, एंड वी हैव created a very big impact by planting around 1 lakh trees of apples, high density apples. और जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो जो चकपोरा में है, वो भी एक पीपीपी मॉडल पे हम काम कर रहे हैं ब्लॉक कोहिमा ब्लॉक कुलगाम के साथ। वहां पे हम पॉलीथीन को एक इनोवेटिव तरीके से हैंडलूम एंड चरखा की मदद से उसमें हम पॉलीथीन को धागे में कन्वर्ट करके उसकी चादर बनाते हैं, और उस चादर को फिर हम डिफरेंट तरीके के बैग्स बनाते हैं जो एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो ये हमें बताइए कि आपके दिमाग में कैसे ये आइडिया है?
इस आइडिया के पीछे एक्चुअली एक लंबी कहानी है, बट कटिंग इट शॉर्ट, आई हैव रिसर्च अ लॉट ऑन दिस। मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान मैंने इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, देखा, सुना, रिसर्च किया। एंड जो डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे स्विट्जरलैंड है, जैसे सिंगापुर है, या जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे, डेनमार्क है, वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज मैंने पढ़ी कि वेस्ट को एक इनोवेटिव तरीके से कैसे हैंडल किया जाए, ताकि इससे एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट किया जाए, एंड एट द सेम टाइम रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप की जाए। तो उसी मॉडल को मैंने यहाँ पे अपने इनोवेटिव तरीके से सेटअप करने की कोशिश की, एंड थैंकफुली वी आर एक्चुअली प्रूविंग इट एट स्केल। हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो है अनएम्प्लॉयमेंट, हालांकि पूरे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो कैसे आप कंट्रीब्यूट करती हो, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिहाज से? अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के टाइम पे अगर हम लोग खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहेंगे, या इनिशिएट नहीं करेंगे, या क्रिटिकल थिंकिंग से अपने डिफरेंट वेंचर्स नहीं करेंगे, तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी। इवन इफ यू आर एन इंजीनियर, इवन इफ यू आर ए डॉक्टर या मेडिकल प्रोफेशनल, आपको फिर भी टेक्नोलॉजी के चैलेंज के थ्रू जाना पड़ता है। एक इंजीनियर को भी, एक डॉक्टर को भी, एक क्लर्क को भी आजकल सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, क्योंकि उसके ऑफिस में ये सारी चीजें हैं। तो मेरा यही कहना है कि अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को यूज करके अपने डिफरेंट वेंचर्स इंसान कर सकता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे आपने ये भी देखा होगा कि इवन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है वो भी अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है। हर दिन धरने देखने पड़ते हैं कि हमारी सैलरी इंक्रीज करो, कोई बोलता है कि हमारा 7th पे 8th पे दिला दो, कोई बोलता है हमें इंसेंटिव दे दो, हम बेसिक सैलरी पे काम कर रहे हैं। इवन जो हायर एजुकेशन लेवल पे भी हमने देखे कि लोग गवर्नमेंट जॉब करके भी प्रोटेस्ट करते हैं। दैट मीन्स दे आर एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से, हालात की वजह से वो भी अपना जो है उनकी रिक्वायरमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट, वो भी फुलफिल नहीं हो पाती। एंड दैट्स वाई कि ये एक चैलेंज जो है उनको भी लेना चाहिए कि हम अल्टरनेटिव स्कीम्स ऑफ इनकम कैसे देखें, हम इम्पैक्टफुल वेंचर्स कैसे क्रिएट करें, या हम इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें। जैसे एक इम्पैक्टफुल एंटरप्राइज लाइक हमारा वेव वेस्ट टू वेल्थ सस्टेनेबिलिटी है, इसमें बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स जो इवन कश्मीर बेस्ड हैं, या इवन फॉरेन कंट्रीज में भी है कश्मीर बेस्ड है, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट दिखाया है कि हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। हालांकि वो सेटल्ड है, लेकिन दे वांट टू इन्वेस्ट, क्योंकि उनको पता है कि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो डिफरेंट अल्टरनेटिव स्कीम्स में इन्वेस्ट करके भी लोग अपना जो है अपना रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी इनकम स्ट्रीम्स सिक्योर करना चाहेंगे, या करते हैं भी। एंड इनफैक्ट इसकी ऐसे वेंचर्स की मदद से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बूस्ट मिल रहा है। तो हम जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो इसी यूनिट पे हम अराउंड 20 से 25 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, एंड वी आर अर्निंग फॉर आवरसेल्व्स एज वेल, एंड एट द सेम टाइम वी आर क्रिएटिंग अ वेरी ग्रेट इंपैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। सो मेरी यही सजेशन रहेगी कि इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि एक पर्टिकुलर जॉब के पीछे ही हम लगे रहें, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। सो इट इज बेटर टू पिवट योर करियर टुवर्ड्स डिफरेंट वेंचर्स, जो आप खुद से भी कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। ये बताइए कि कितने एरिया को आप कैटर करें, कितने हाउस होल्ड्स में आप कलेक्ट करते हैं? अभी हम कुलगाम और अनंतनाग ब्लॉक, अनंतनाग के कुछ ब्लॉक्स में ऑपरेट करते हैं। हम ऑलमोस्ट 4000 to 4500 हाउस होल्ड्स में अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने कुछ नए एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं ब्लॉक लेवल पे, जहां पे हम बहुत ज्यादा हाउस होल्ड्स को और कैटर करेंगे, और अपनी फैसिलिटी को हम थोड़ा एनहांस भी करेंगे कैपेसिटी वाइज। और नए नए एमओयूज जब हम साइन करेंगे डिफरेंट ब्लॉक्स के साथ, तो हमारे अंडर जो डिफरेंट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स हो जाएंगे, यहाँ सेग्रीगेशन शेड्स, कंपोस्ट, डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है, तो वहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा हाउस होल्ड्स को कैटर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये मैनुअल या फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, तो इसको कैसे साइंटिफिक तरीके से देखा जाता है कि इसमें पैरामीटर्स क्या क्या है? हाँ, बिल्कुल सर, इसको एक्चुअली हम हर एक बैच को जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, एक तो हम रियल टाइम में इसकी टेस्टिंग करते हैं अपनी इन हाउस लैब में और अपनी मशीन की मदद से। इसकी मॉइस्चर कंटेंट इसका चेक करते हैं, इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, इसकी एसिडिटी, पीएच लेवल्स वगैरह चेक करते हैं, और उसका ग्रेन साइज, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर वगैरह, वो सारी चीज़ें चेक होती है। उसके बाद भी हम हर एक बैच को एक स्पेशल लैब में भेजते हैं जो स्कॉस्ट की है, वहाँ से टेस्ट होकर जब अप्रूव होकर आता है, तो उसके बाद ही हम उसको फाइनल पैकिंग करके मार्केट में भेजते हैं।